students, this is Deepika and welcome to my YouTube channel Siddhi Vinayak Classes. Today we are going to start class 12 accountancy, and in this video we are going to discuss about the syllabus and the introduction of the chapter accounting for partnership forms. So let me tell you about the syllabus. The paper is of 100 marks. 100 marks paper, which is divided into two parts, 80 marks and 20 marks. Here 80 marks is our theoretical aspect and 20 marks is practical aspect. Practical aspect. So this will be useful in the end of the session, and we are going to start this one. There are three books. Book number 1, 2 and 3. Three books are there. Three books. Three books are there. Number 1, double entry bookkeeping. Number 2 is financial statements of a company, and number 3 is company accounts. जिसमें कि कंपनी अकाउंट्स में क्या है, जिसमें हमारे शेयर कैपिटल डिवेंचर्स एंड ऑल ये सब इंक्लूडेड हैं. So let us start with the video. The main content is this. 80 marks is theoretical and 20 marks is our practical aspect. Let us start with the syllabus. First of all, we are going to do our book number 1, double entry and bookkeeping, accounting for non-profit organizations and partnership firms. This is the volume number 1, and I have 2019 edition. Because of this lockdown, I could not get the latest edition. So we are going to do from this book, and you can do with the book which you have. This book contains 7 chapters. First one is accounting for non-profit organizations. Second, accounting for partnership fundamentals. Third, goodwill and its valuation. Fourth is profit sharing ratio among the partners. Fifth one is admission of a partner. Sixth one is death and retirement of a partner. And seventh one is dissolution of the partnership firm. So first of all, we are going to discuss the chapters which have a huge weightage in our chapter. That is accounting for partnership firms. Accounting for partnership firm we are going to discuss. Accounting for partnership forms. This is our first chapter. Chapter number 2, fundamentals. Chapter number 2 of the book first. Chapter number 2. In this chapter, we will be learning what is partnership, who are the partners, and some small concepts which are required for understanding the accounting for partnership firms. Let us start. As per the definition, partnership Partnership is
The relation between persons, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or anyone or any of them acting for all. Any of them acting for all. This the partnership means. So हमें इसमें क्या समझने की जरूरत है कि पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज द relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो हमें क्या समझने की जरूरत है? These are the small terms we need to do. We need to understand. So let us understand partnership. These are two persons. Business. Profit. These are the persons and relationship between these persons who agree to share profits. जो कि हमारे profits को share करेंगे. कौन share करेंगे? It is not always important that partners are two. Many are there, but the ceiling limit is 50. So, who have agreed to share profits, जो कि profits को हमारे share करने के लिए तैयार होते हैं या फिर राजी हुए हैं, और जो कि क्या करते हैं, profits of a business. इस business के क्या हैं? ये profits हैं इस business के. और business क्या है? Carried on by all. Carried on by all. या तो सब मिलके इस बिजनेस को चला सकते हैं, ये सब मिलके इसको चला सकते हैं, या फिर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, देयर इज लाइट प्रॉब्लम, लेट मी चेक इट प्लीज. या तो ये सब मिलके इसको चला सकते हैं, या फिर इन सब ने क्या किया, एक व्यक्ति यानी कि सपोज दिस पर्सन they have nominated and he is carrying on the business. What the business is? Any activity which is carried out for earning the profits is known as business. I hope you must have understood the definition of partnership. What the partnership is? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all और any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या होता है? कुछ लोगों के बीच की एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जहां पे वो एक साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस से जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं. और जो बिजनेस है वो या तो सब मिलके चला सकते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति एक जो उनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, उन सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, वो चला सकता है. दिस इज आर व्हाट द पार्टनरशिप इज. नोट दिस डाउन.
Now, the nature of partnership. Nature of partnership. पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? पार्टनर्स and the firm are the separate legal entities. Separate legal entities क्या होती है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? पार्टनर्स और जो फर्म है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि दोनों अलग अलग है. बट लॉफुली if firm is unable to pay its debts, it can be recovered from the partners properties personally. क्या है? नेचर क्या होता है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन लॉफुली क्या होता है? अगर फर्म जो है अपने डेट्स को पे करने में सक्षम नहीं है, नहीं पे कर पा रही है, तो क्या है वो के कहां से? पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उनसे क्या है? रिकवर किए जा सकते हैं. दिस इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट थिंग. फीचर्स. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं? क्या क्या होना चाहिए? टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए. टू और मोर पर्सन्स. ओके. प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए. प्रॉफिट शेयरिंग. लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? लास्ट वन इज बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय वन, by all, or any one of them acting for all. Acting for all. These are the features of partnership. क्या है? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए. कोई भी अकेला व्यक्ति क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता. रिलेशनशिप किसके साथ होगा? दूसरे के साथ. अकेला नहीं कर सकता. प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए और बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि समझौता होना चाहिए. और बिजनेस जो है कोई भी एक पार्टनर या फिर सारे पार्टनर जो है मिलके बिजनेस को चला सकते हैं. लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट वन. राइट्स ऑफ पार्टनर्स. राइट्स ऑफ partners. What are the rights? Profit sharing. Profit sharing में right है उनका. Second one is management of business.
मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए। कंसल्टेंसी, अगर कोई भी बिजनेस में कोई भी फर्म में डिसीजन लिया जा रहा है तो सारे पार्टनर्स से क्या है, क्या होना चाहिए, उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। एंड मैनी मोर आर देयर लाइक सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में उनको पार्टिसिपेट करने का राइट है, प्रॉफिट शेयरिंग का राइट है उनको। अगर कोई पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन को अलाउ करने का उनको पूरा राइट है कि किसका एडमिशन किसी दूसरे पार्टनर को एडमिट करना है या नहीं करना, ये उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। ये तो पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस, ओके। अगर फर्म के बिहाफ पे कोई भी पार्टनर्स बिजनेस में एक्सपेंसेस करता है तो उसको वो सब उनका रिइंबर्समेंट लेने का भी राइट है। प्रॉपर नोटिस के बाद जो पार्टनर है उसको फर्म से रिटायर होने का राइट है। एंड मेनी मोर आर देयर लाइक every partner has the right to share profits and losses with other partners। अगर पार्टनर ने कोई भी लोन एडवांस किया है, लिसन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोन अगर एडवांस किया है तो उस पे इंटरेस्ट का राइट है, इंटरेस्ट का राइट है एट द रेट 6%। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन कम एज एमसीक्यू। तो अगर पार्टनर ने लोन एडवांस किया है टू द फर्म तो क्या है, उसको इंटरेस्ट का राइट है एट द रेट 6%। पार्टनरशिप डीड, नेक्स्ट इज आवर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, व्हाट द पार्टनरशिप डीड इज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज मेंशन्ड, सारे पार्टनर्स के नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स का एड्रेस, किसकी कितनी सैलरी होगी, व्हाट द रेम्युनरेशन इज, व्हाट द बोनस इज, व्हाट द कमीशन इज, एवरीथिंग इज रिटन इन दैट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक प्रूफ होता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। दिस इज द पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, अगर कोई भी पार्टनर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, इन दैट केस पार्टनरशिप डीड एक्ट्स एज द सुप्रीम पावर। इन दैट केस पार्टनरशिप डीड एक्ट्स एज द सुप्रीम पावर। क्या करती है पार्टनरशिप डीड जो है हमारी, वो सुप्रीम रोल जो है प्ले करती है, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा वही आपको करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर्स है, पार्टनर्स हैं आपके ए बी सी एंड ए इज सेइंग आई वांट 12,000 पर एनम, रुपीज 12,000 पर एनम मुझे सैलरी चाहिए। एंड ये कह रहे हैं मुझे चाहिए एट द रेट 10% कमीशन ऑन टर्नओवर। एंड मिस्टर सी कह रहे हैं तो मुझे भी क्या चाहिए, बोनस चाहिए ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का मुझे बोनस चाहिए फर्म से। तो इन दिस केस दे विल बी डिस्प्यूटिंग, डिस्प्यूट हो जाएगा तीनों के बीच में कि हम आपको ये नहीं दे सकते एंड ऑल। तो इन दिस केस पार्टनरशिप डीड जो है वो अपना सुप्रीम रोल जो है वो प्ले करेगी। जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा वही पार्टनर्स को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए की सैलरी 12,000 ना होकर के 10,000 है तो मिस्टर ए को 10,000 सैलरी मिलेगी। इनको कोई कमीशन नहीं है तो इनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, और इनको बोनस जो है 1 लाख की जगह अगर 10,000 रुपए लिखा हुआ है तो इनको सिर्फ 10,000 रुपए का बोनस ही दिया जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। टुमारो in the next video we'll be doing the practical aspects. We'll be starting with the practical aspects of partnership firm. We'll be doing the accounting for partnership firm. We'll be starting the practical aspects. Please note this down and thank you for watching the video. If you like the video, please do like and share my video.
and subscribe to my channel Siddhivinayak Classes, and don't forget to hit the bell icon for more and latest updates. Thank you for watching.